Hello student, we studied in my first video about the basic of constitutions, then importance, then also process of framing the constitution, and also learn about the some features of constitutions. Now we start from the remaining features of the constitutions. Before the starting today's lecture, again I repeat, if you have any doubt or query, please ask me through the comment. We have already studied 1 to 8 features and now we start from 9 feature. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स क्या, कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स का हो जाए वो कोई भी इलेक्शन पार्लियामेंट का हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, उसमें वो वोट कास्ट कर सकता है, मीन्स उनको वोट करने का राइट मिलता है, और वो भी विदाउट ए डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड. उसमें ये मैटर नहीं करता कि उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो किस कास्ट का है, ये कुछ मैटर नहीं करता. तो इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ एडल्ट सफरेज विच इज़ फ्लेक्सिबल. According to that, any citizen who is above 18 years of age and above possessing right to vote in election of parliament, legislative assembly or local self-government bodies without any discrimination of educations, property and economic standard. Feature number 10, secularism. Secularism means क्या, different religion के लोग एक साथ वहाँ पे रह सकते हैं. We have discussed earlier about secularism in preamble. In the constitutions, India has been declared as a secular state. People of different religion reside in India. Means India में अलग अलग religion के लोग हैं वो stay करते हैं. Therefore, the state cannot discriminate any citizen on the basis of religion. No citizen can be given a special right or cannot be deprived of certain right. Means कास्ट या रिलीजन के ऊपर से किसी को भी ज़्यादा भी राइट नहीं दे सकते. मीन्स कोई स्पेशल राइट उनको नहीं मिलता और ना तो किसी को ये भी कि ये राइट इनको नहीं मिलेगा. The state has to be absolutely impartial and neutral in respect of religion. Only secular state can offer proper or equal treatment towards all citizens. Means all citizens के लिए equal और proper treatment provide होनी चाहिए. Secularism means that the state does not interfere in matters of religion or is biased to any specific religion. The state has to be secular and indifferent. Followers of every religion are free to follow and practice the religion of choice. Means every citizen को राइट है कि वो जो भी रिलीजन फॉलो करता है वो फ्रीली फॉलो करे और उनको ही कंटिन्यू करे. उनको चॉइस है, उनके ऊपर हम ये नहीं कर सकते कि आपको यही रिलीजन फॉलो करना है इफ़ आपको इंडिया में स्टे करना है, बिकॉज अवर इंडिया इज़ अ सेक्युलरिज्म कंट्री. 11 पॉइंट जुडिशियल review. What is judicial review? We will study in 11th chapter because वो पूरा chapter judiciary के related है. Now we just one time plain reading. Judicial review is the chief characteristics of the constitutions. Judicial review administer the working of the union and state within the jurisdictions. Means particular area jurisdictions है वो फिक्स होता है, उनके अंडर में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो उनको करना है. विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड एन एफर्ट टू हार्मोनाइज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू. पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स, एक्सटर्नल ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस एंड जुडिशियल जजमेंट आर गिवन फॉर द जुडिशियल रिव्यू. If the court find any indiscrepancy in external order, ordinance or judicial judgment, it can stop them by declaring them unconstitutional. क्या बोला है लास्ट 3 लाइन में कि पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स है, एक्सटर्नल ऑर्डर्स है, ऑर्डिनेंस है, जुडिशरी जजमेंट्स है, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए दिए जाते हैं. और कोई भी कोर्ट फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एक्सटर्नल ऑर्डर्स और ऑर्डिनेंस तो वो है उनको स्टॉप कर सकती है.
कैसे कि वो उनको बोल सकते हैं भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वैसे उनको वो डिक्लेयर करके स्टॉप कर सकती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशंस में वो नहीं होता। देन 12th पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव? 6, right. Fundamental rights are conferred to the people of India by the constitutions to live a dignified life. The most valuable capital of our country. Fundamental rights are conferred to the people of India by constitutions to live a dignified life. The most valuable capital of our country is in the overall development of nation, which further lies in the fundamental duties and rights. Right to constitutional remedies, and for the children 6 to 14 years of age, right to education are also made available. 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के जो भी बच्चे हैं उन लोगों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनको मिलना वो उनका राइट है, और वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है कि भाई जो भी हमें राइट मिला है, अगर हमें वो फॉलो नहीं करने, हम फॉलो कर रहे हैं बट हमें वो अच्छी तरह से यूज़ करने को नहीं मिल रहा है, तो हमें उनकी अगेंस्ट में हम केस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो हम डीप में पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। नाउ 13 पॉइंट्स, डायरेक्टिव principle of state policy. Protection of people, security and welfare should be carried out by the state. This principle provide direction for the state governance and policy making, so they are called directive principle. 14 number, provision for backward section and tribes, जिनको हम बोलते हैं ST और SC, right? To uplift and include backward section and tribes and deprived class in the mainstream, there are specific provision in the constitutional. जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो हम पढ़ चुके हैं पहले सोशल में, उन लोगों का डेवलप करने के लिए, मीन्स अपलिफ्टमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सम स्पेसिफिक प्रोविजन दी गई है। रिजर्व सीट्स आर अलोकेटेड इन लेजिस्लेचर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इलेक्शन टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव। Reservation quota has been provided for admission in education institute and government jobs in proportion to their population to provide equal opportunities. Means जो भी बैकवर्ड सेक्शंस के स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको ये गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस वगैरह होती है, वो जॉब में भी उनके पॉपुलेशन जितनी होती है उनके प्रोवाइड में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। कोई जगह पे लेजिस्लेचर हो, सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, उनके इलेक्शन में भी उनको सीट्स रिजर्व की जाती है, उन लोगों के लिए उनको थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू प्रोवाइड किया गया है। चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स आर गिवन स्कॉलरशिप, बेसिक एमिनिटीज एंड वेवर फीस which come under optimistic policies and shielding policies as per provision in the constitutions. कोई ऐसी एग्ज़ाम्स होती है गवर्नमेंट की जिनकी फॉर्म फीस होती है और अदर फीस होती है, वो बैकवर्ड एरियाज़ के बच्चों के लिए फ्री ऑफ होता है। यहाँ पर हम 1 to 14 फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो हमने कंप्लीट किए। अब हमने जो बीच में एक पॉइंट कि प्रीएम्बल का था वो छोड़ दिया था, अब हम वो करेंगे। वी मूविंग ऑन क्वेश्चन, व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज द कोर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको हम प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बिगिन विथ प्रीएम्बल। किसी की भी शुरुआत, कोई भी चीज़, चाहे हम गुजराती में निबंध ही क्यों ना लिखे, वो भी हम प्रस्तावना से ही शुरुआत करते, तो ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनका स्टार्टिंग भी प्रीएम्बल से होता है। द वर्ड्स रिटन इन प्रीएम्बल हाईलाइट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारी प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into the sovereignty, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of stature and of opportunity, and to promote among them all
fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. ये पूरी प्रीएम्बल का मीनिंग क्या हो सकता है कि हम पीपल इंडिया के solemnly resolve to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and all citizens को सिक्योर करते हैं फॉर द जस्टिस सोशल फिर इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इक्वालिटी ऑफ स्टेट्यूट्स मीन सबके लिए इक्वल लॉ बनाते हैं सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और वो सब के बीच में हम हमारे राष्ट्र की एकता और उनकी इंटीग्रिटी मीन्स अखंडितता मीन्स यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोवाइड करते हैं उनकी हम खातरी दे सकते हैं फिर और इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt enact and give to the ourselves these constitutions. ये थी हमारी प्रीएम्बल. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए. प्रीएम्बल क्या है हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रीएम्बल हाईलाइट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस जो लास्ट लाइन में लिखा है. द प्रीएम्बल रिमेन अनचेंज टिल 1976. 1976 तक प्रीएम्बल चेंज नहीं हुई थी वैसी की वैसी थी बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन 1976 द वर्ड्स सोशलिस्ट सेक्युलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वेर एडेड बट 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाया गया और ये जो 4 वर्ड्स थे वो ऐड कर दिए गए. कौन कौन से? सोशलिस्ट सेक्युलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. द प्रीएम्बल वर्बलिसेस द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एम आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स. Therefore, the preamble straightway give a clear insight of the rule of welfare. The preamble reflect the constitutional framers' psyche. Importance of preamble. Preamble का importance क्या है? तो फर्स्ट लाइन में लिखा है The preamble as a soul of the constitution is also an important necessity. To understand the framing of any law or its interpretation, preamble gives proper गाइडेंस. प्रीएम्बल है हमें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है किसके लिए? एक तो कोई भी लॉ हो उनको प्रॉपरली फ्रेम करने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए और उनको इंटरप्रेट करने के लिए. टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ प्रीएम्बल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. कोई भी लॉ फ्रेम करते हैं तो उनके बिहाइंड कौन सी पॉलिसी है वो समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करती है. The preamble is a useful tool to avoid the trouble in the interpretation of constitutions. When any ambiguity or obscure detail in law arises, preamble help in understanding and interpreting the law. अगर हमें preamble अगर कोई लॉ हो उसमें हमें समझने में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह क्रिएट हुई हो तो प्रीएम्बल है वो हमें अंडरस्टैंड करने में और इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है. Thus the preamble serve as a compass to understand the provision of constitutional law. Preamble is a nation's unity, integrity and is the standard crust of the brotherhood among the citizens who are having noble sentiments and ideals. Preamble is backed by high ideas and goal. Preamble क्या है? Preamble is a nation's unity, integrity and also standard crust of the brotherhood. हम बोलते हैं ना जो भाईचारा होना चाहिए मीन्स जो भी ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स तो वो भी हमें प्रीएम्बल थ्रू समझने को मिलता है कि हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए. और हम वैसे भी कि कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी राइट. तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म वो सब हम बाद में पढ़ेंगे वो कितना इम्पोर्टेंट है. तो ये सब हमें ये जो हमारी प्रीएम्बल है उनके थ्रू समझने को मिलता है. नाउ पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल कौन कौन से हैं और कितने हैं? है बहुत सारे बट मेन 3 पिलर्स है. कौन कौन से हैं? टोटल है सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस
liberty, fraternity and equality. But we will study only three main pillars of preamble. First one is democracy. The ultimate sovereignty of power is with the people according to Indian constitutions. There is no particular regime of any one particular person. Instead, it is with the people. Democracy. The word is derived from Greek word demos, means people, and kratos means power. डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया है? तो कि ग्रीक वर्ड से. ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर. कंट्रीज पावर इज नॉट विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्टेड इट इज विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री. समझ आया? डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज सच एन अरेंजमेंट इन विच there is equal justice for people to social, economical, political and having equal rights of participation. सबके लिए I mean for the all citizen socially, economically, politically rights equal है. In democratic India, people elect their leaders through their choice by casting vote to represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of the prime minister and his or her कैबिनेट. हमारे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट हम खुद चूज़ करते हैं वोट कास्ट करके हमारी चॉइस से. दैट्स वाई इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर. दे आर गिवन स्पेसिफिक टाइम लिमिट. सिमिलरली द वोटर इलेक्ट स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट. हैंस डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. प्लीज़ ये लाइन मार्क कीजिए, प्लीज़ अंडरलाइन कीजिए. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. यू हैव टू राइट दिस लाइन कंपल्सरी. डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. कैबिनेट कंसिस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज responsible to the parliament. Any citizen of India who possesses required constitutional eligibility can contest the election. जो भी constitutional eligibility require possess करता है वो election में as a contest कर सकता है. Ministerial position are not acquired hereditary. Means heredity में ये पोस्ट नहीं मिलती कि भाई इनके फादर है वो मिनिस्टर है तो अभी नेक्स्ट मिनिस्टर उनका सन ही होगा. ये नहीं होता. ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ 5 years ऑफ टेन्योर. एवरी गवर्नमेंट का टाइम पीरियड क्या होता है? 5 years का. एवरी 5 years हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है. और ये भी पॉइंट याद रखना है कि मिनिस्ट्रियल पोजीशन आर नॉट अक्वायर हेरिडिटरी. This government works under the principle of constitutions and therefore it is known as responsible government. हमारी जो गवर्नमेंट वर्क्स करती है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं उनके अंडर में वर्क करती है. therefore हम उनको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोल सकते हैं. The democratic government is based on liberty, equality and feeling of fraternity. ये सब वर्ड्स हमने प्रीएम्बल में भी देखे थे. And continuously work to achieve this goal. The Constitution disseminates the power to people to cast their vote according to their free will and thereby instill confidence in the constitutions. The Constitution of Democratic India renders fundamental rights, principle for political direction, parliament, member of assembly, independent and impartial justice, and election commission are those provisions which make our country democratic in every means. ये सब क्या है कि डेमोक्रेटिक इंडिया रेंडर्स फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल फॉर डेमोक्रेटिक डायरेक्शंस, फिर पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ असेंबली है, ये सब बन के हमारे कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाता है. एडल्ट सफरेज मीन्स द सिटीजन अबव 18 years of age can cast his or her vote to one's choice of leader without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education, income और birthplace. ये कोई भी चीज़ है वो मैटर नहीं करती कि वो कहाँ का है, कौन सी लैंग्वेज है उनकी, क्या जेंडर है, कितना एजुकेशन है, उनका रिलीजन कौन सा है, उनकी कास्ट
कौन सी है, ये कुछ मैटर नहीं करता, वो उनकी चॉइस है, उनको जिसको भी वोट करना है वो कास्ट करेगा वोट. But it is essential that the citizens are enlisted in the electoral list. मीन उनका इलेक्शन कार्ड उनके पास होना चाहिए, इलेक्टोरल लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए. ये था हमारा फर्स्ट पिलर डेमोक्रेसी. सेकेंड वन इज़ सोशलिस्टिक. प्लीज़ आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक रखो. इफ़ इसमें कुछ भी ब्लर हो या आपको ठीक से ना दिखे तो आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक हो, आप प्लीज़ उसमें अंडरलाइन कीजिए. मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप प्लीज़ अंडरलाइन कीजिए. सोशलिस्टिक. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution amendments, Constitution of India added in the 42nd amendment the word socialist. पहले ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं था. 42nd इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आया और फिर हमने ये एक वर्ड था वो ऐड किया. मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया directly or indirectly show social revolution which brought social and economic equality and further the aim of the welfare state. main aim क्या है हमारा? welfare state. The principle of socialistic pattern direct social, economical, political equality for citizen as given in the preamble. वो जो हम पढ़ चुके हैं. It is now regarded as a prime feature of the state. It reflects the fact that India is committed to secure social, economic and political justice for all its people. That means for all its society. India stands for abolishing all form of exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resource and wealth. मीन्स जो भी छोटे बच्चों का एक्सप्लोइटेशन होता है और जो पुअर पीपल है उनके भी एक्सप्लोइटेशन है वो सब एबॉलिश किए गए हैं और इनकम, रिसोर्स और वेल्थ सब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. Any one particular person should not have power over all asset. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facility and provision from the society. Means उसमें भी हमने पहले जो बोला था वो कि लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, बर्थ प्लेस, कास्ट कुछ भी मैटर नहीं करता है. कोई भी पीपल है वो सोसाइटी में से कोई भी चीज़ लेने के लिए, कोई भी फैसिलिटी लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फ्रॉम सोसाइटी एंड देयर बाय एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर. ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये पुअर है तो उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी. चाहे वो पुअर हो या रिच हो, दोनों के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. Therefore, we can say that Constitution of India is a socialistic document. Constitution of India is a socialistic document. ये मैंने 2 times रिपीट किया. क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है उसमें. Third pillar, secularism. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution amendments, the word secular was inserted. हमने सेकेंड पिलर देखा था सोशलिस्टिक, वैसे ही 1976 में सेक्युलर वर्ड भी ऐड किया था. इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. क्यों? बिकॉज इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं और वो भी फ्रीली. उसमें उनको कोई भी ये नहीं कि आप यही रिलीजन फॉलो करो, वो उनके लिए फ्री है कि उनकी चॉइस से उनको जो भी फॉलो करना है वो रिलीजन फॉलो कर सकता है. इंडिया कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. India does not follow any particular religion, so the country never promote any religious activity. The country cannot involve any secular activity with the religious activity. The citizen of the country has a freedom to choose his or her religion. कंट्री के सिटीज़न को फ्रीडम है उनका रिलीजन चूज़ करने के लिए.
The country cannot discriminate the citizen on religious basis. Equal job opportunities and political rights to the citizen are given without any religious discrimination. पे ये रिलीजन फॉलो करता है तो उनको ये जॉब नहीं मिल सकती, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं हो सकता. ऐसा हमारे इंडिया में नहीं है. हमारे कंट्री में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रिलीजन्स सभी को इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. इन दिस वे सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फाउंडेशन एंड मैंडेटरी फीचर of the constitution. Sarvadharma Samriddhi and Sarvadharma Sambhav are the principle incorporated in the constitution. So no particular religion would be encouraged in any state. There is no prohibition on any citizen to propagate his or her religious belief, trust and faith. ये पैराग्राफ में दो अलग अलग सेंटेंस स्टेप दिया गया है. एक तो सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव. उनका मीनिंग क्या है कि सर्वधर्म समदृष्टि मीन्स कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द रिलीजन, मीन्स सब रिलीजन को एक नज़र से देखना चाहिए, उसमें हमें कोई भी पार्शलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. और सर्वधर्म समभाव मीन्स इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, मीन्स सब रिलीजन को इक्वल मानना चाहिए. यही हमारा प्रिंसिपल है जो इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो 3 पिलर्स जो थे हमने वो कंप्लीट किए हैं और बेसिक फीचर्स तो हमने पहले ही कर लिए थे अच्छी तरह से. अभी मैं बोल रही हूँ कि ये पिलर्स में और प्रीएम्बल में कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. चैप्टर 8 मैंने 2 लेक्चर्स में करके आपको प्रोवाइड किया है, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर से ट्राई करूँ कि जितने हो सके उसको आपको चार्ट भी प्रोवाइड कर सकूँ, जितना पॉसिबल है उनका मैं मेरी तरह से बेस्ट ट्राई करने वाली हूँ. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी. थैंक यू सो मच.